हाउ कैन एनी इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कि यार अब ये सही टाइम है, चलो इसमें एंटर कर लेते हैं? There is nothing. It's the question of how much risk an investor is willing to take. Momentum investing के अंदर what you typically look at, we look at the price changes. So while momentum is purely technical, earnings momentum brings the sentiment or the qualitative part to it. So आपने कहा कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, it means कि people are getting too bullish. Yes. So now there is a chance for reversal. जब हम देखते हैं कि हमारे नुक्कड़ के आसपास के सब लोग बना रहे हैं रिटर्न्स, हम छूटने के, हम रहने के, तो हम भी एंटर कर लेते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यूएशन। जो हमारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं कि भाई हम मिड कैप स्मॉल कैप के एसआईपी स्टॉप कर दे, आप उनके लिए स्पेसिफिकली क्या कहना चाहोगे? Hey, hi everyone, very good evening. This is Zeel Doshi Thakkar and today we have got a very interesting guest with us on this podcast. You know guys, we often think कि यार ये momentum stock आखिर होता क्या है? How do we have momentum stock in our portfolio? So well, to explain that to us, we have Mr. Rajesh Jayaraman from Nippon India AMC to help us understand how to select the right momentum stock for our portfolio. So Mr. Rajesh, I welcome you to our podcast. Thank you, Zeel. My pleasure. Yes. So sir, can you explain us what is momentum as a theme or what are momentum stocks? Sure. So momentum, as we can relate to this in everyday life. So before coming to the stock, what is momentum all about? So momentum is something which is in a motion going towards a particular directions. Right. And if you are in that line, you can also benefit from. So typical example is a crowded Mumbai local train. So you want to board that train. What you do is you just stand with the crowd and in the push you also get inside. आप पहुंच जाओगे अंदर, correct? Right. तो उसी तरह से momentum stocks भी वो स्टॉक्स को हम बोल सकते हैं जो टिपिकली आज इन्वेस्टर उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कई रीज़न हो सकते हैं, कुछ नैरेटिव होगा, हो सकता है कुछ न्यू एज बिजनेस है या फिर ऐसे कुछ अनोखी बिजनेस जो अभी है नहीं मार्केट में, सो विच इज़ वाई पीपल वांट टू पार्टिसिपेट देयर और पीपल बिलीव दिस आर द बिजनेस विच विल डू फैंटास्टिकली वेल नेक्स्ट 3-4 years, तो हमको अभी खरीदनी है। सो देयर इज अ ट्रेंड विच इज देयर। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स विच यूजुअली कम्स एट अ मोमेंटम। सो मोमेंटम इज ऑल अबाउट प्राइस. And what is this price? Price is basically the value at which that stock is trading, the stock price. And if it continuously keeps going up in a particular or moving in a particular direction, which is going up essentially, you will try and capture that. That is what is momentum investing all about. Momentum investing के अंदर what you typically look at, we look at the price changes on a 6-month basis, on a 12-month basis, to understand whether a particular stock is actually going in a upward trend. If it's there, then obviously that will feature higher in terms of ranking order basis momentum. Right. And this would be the stocks you would want to benefit from or ride on. Okay. So now my question is that how do we identify this momentum? Yeah. That when should we enter? Let us say कोई भी स्टॉक जब वो ऊपर जाने लगता है ना, तब हम सबका ध्यान जाता है कि यार ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, हर रोज़ 5% का सर्किट टच कर रहा है, चलो अब हम एंटर करते हैं। बट यू नो जैसा हमारा लक होता है कि भाई हमने एंट्री मारी और स्टॉक नीचे चला गया। सो हाउ कैन एनी इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कि यार अब ये सही टाइम है, चलो इसमें एंटर कर लेते हैं, एंड अब यार इसका साइकिल फिनिश होने आया है, अब हम थोड़ा सा एग्जिट मार देते हैं? कोई कैसे इंटरप्रेट कर सकता है इसे? तो इसके लिए थोड़ा बेंट ऑफ माइंड होना पड़ेगा आपको फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव. इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बट वन सिंपल वे विच पीपल लुक एट, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ इंडाइसेस आर बिल्ट अराउंड दैट, जो मार्केट में भी इंडाइसेस है उसके अंदर क्या ट्राई करते हैं, दे लुक एट द ट्रेंड फॉर 6 month and 12 month प्राइस मूवमेंट्स का, एंड दिस इज डन ऑन अ डेली बेसिस ऑब्वियसली बिकॉज डेटा कम्स इन एवरी डे कम्स इन, एंड एवरी डे यू गो बैक 6 months, go back 12 months, see how the trend is. If it's showing a consistent uptrend, obviously that's where you would want to participate. And moment it starts to flatten at some point of time and then starts to slightly decline, it will give you signals. This is the time you need to be cautious and probably look to trim or moderate the momentum in that particular stock. So that is how typically. So momentum can work both ways. It can help you pick a stock. It can also tell you a time when probably you need to reduce the allocations to a particular stock, especially if it's moving towards the downside. So that is how momentum typically works. The one interesting thing about momentum, because you're talking about momentum and how people are interested in momentum, is this as a factor has worked beautifully over not only in India but across multiple geographies, be it Europe, be it US. We have seen how momentum as a factor among all the other factor investing which is there. उसके अंदर आप देखोगे कि momentum एक फैक्टर है, क्वालिटी एक फैक्टर है, वैल्यू एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। उन सारे फैक्टरों में मोमेंटम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक ग्लोबली, इवन इन इंडिया ओवर द लास्ट 20 years का हिस्ट्री है, 2006 से NSE का इंडाइसेस है मोमेंटम एंड अदर फैक्टर्स को लेके, मोमेंटम हैज बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस.
या बिकॉज हमें रिटर्न्स दिख रहे हैं ना कि अभी वो ऑलरेडी मोमेंट में चल रहा है, ऑलरेडी अप साइड वैल्यू इन्वेस्टिंग या अदर फैक्टर्स में जैसे देखो वहाँ पे एक वेटिंग पीरियड है कि भाई आई हैव टू वेट, ये स्टॉक फिलहाल डाउन है, कुछ इवेंट ट्रिगर होगा एंड दिस विल गो अप, बट हियर आई कैन ऑलरेडी सी कि हाँ यार ये शेयर रोज थोड़ा बढ़ रहा है, मे बी दिस कंपनी इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड दैट इज व्हाई आई कैन सी सम बेटर परफॉर्मेंस इन द नियर टर्म एज वेल. Okay, so is technical analysis, learning technical analysis, charts, everything necessary if someone wants to invest in momentum stock? See, it's going to be difficult, as I said. So the easier thing is to participate in funds. So be it your as active or passive kind of funds which track this as a parameter, so that you can get a good bouquet of portfolio. आप स्टॉक सिलेक्शन करने बैठेंगे एज एन इंडिविजुअल एंड अज्यूमिंग दैट आपके पास दूसरे काम भी है, यू आर अ प्रोफेशनल, करेक्ट? हाउ मच टाइम कैन यू डेडिकेट फॉर दिस? एंड यू विल हैव टू एनालाइज अ लार्ज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स टू अंडरस्टैंड किस में 100 स्टॉक है, 200 है, 500 है, उसके अंदर से कितने मोमेंटम है, हाउ मच टाइम विल यू बी एबल टू गिव? सो दैट इज वेयर अ म्यूचुअल फंड ऑफरिंग और अ इंडेक्स फंड और अ ETF, all of this can be help, whichever product you like. You can try and participate in them because there it's been managed by somebody who's professional there. So when it's active fund, obviously there's a fund manager there. If it's a passive fund, it's going to track an index which is already constructed basis some parameters. Okay. So you're getting a ready-made portfolio. तो आपको instant चीज मिल रहा है, तो आप इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? It's a call which the investor has to take. I agree. But you know there's always this craze कि यार थोड़ा सा हम stock portfolio भी बना के रखते हैं. So, so let us say I want to make a stock portfolio. I have got some savings with me, and of course I cannot put 100% of my portfolio for momentum. ठीक है, अगर मैं long term investor भी हूँ, shares में ही invest करना चाहती हूँ, so of course I will be like कि maybe you know मैं अपना 70% long term के लिए रखूँ, maybe stable companies में, भले आज move नहीं हो रही है, वो future में होगी. Right. But how much percentage of my money can I allocate to such a strategy? Because ये एक strategy है, right? Momentum. Right. और उसके लिए मुझे थोड़ा सा identification भी करना पड़ेगा कि भाई ये stock moment में है, चलो अब इसमें डालो, अब यहाँ से exit करो, अब यहाँ से exit कर लिया तो second identify करो, third identify करो, and some people enjoy that, they want to do that, they enjoy doing that. So is there any ideal ratio कि कोई investor को बस इतना % आप रखो momentum identify करने के लिए, बाकी आप थोड़ा सा safely अच्छी companies में invest करके रखो? Is there something like that? There is nothing. It's the question of how much risk an investor is willing to take, correct? So if the investor है कि मैं रात को सो सकता हूँ कुछ भी करने के बाद भी, जो भी कॉल लेने के बाद भी, then it's fine. But if the investor who's little worried about the volatility and all, then probably I think it's better to put the core of the portfolio, as you said, 70% of the portfolio, either directly or in the sense investing into some really large businesses जिनका track record बहुत solid है, long term है, या फिर आप come to mutual funds, which is a better way of doing that. And then the 20-30% you can keep it for your this thing, because उनका भी एक अचीवमेंट, एक एम्बिशन है कि मैं ट्रैक करूं स्टॉक्स को, या फिर उनका एक हॉबी भी हो सकता है, उनका एक पैशन हो सकता है. Yeah, people enjoy that. So that 20-30% वो वहाँ पे allocate कर सकते हैं into this. But बी क्लियर कि वो जो करेंगे वो लोग खुद से भी ट्रैक करेंगे, उसके अंदर भी उसके रिस्क भी है, तो उसको भी मैनेज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं सौर हो जाएगा आपके उसके अंदर. सो पीपल शुड हैव द रिस्क एपेटाइट, पीपल शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं अगर 10 मोमेंटम स्टॉक्स में डाल रही हूँ तो कुछ जगहों पे मेरा लॉस होगा एंड आई शुड बी रेडी टू डाइजेस्ट दैट लॉस. अगर वो हो रहा है तो एब्सोल्युटली. इनफैक्ट हमने देखा लास्ट 15 odd years, 20 odd years का डेटा है, उसमें 50% ऑफ टाइम, 60% ऑफ टाइम मोमेंटम हैज बीन द बेस्ट पैरामीटर अमंग ऑल द अदर फैक्टर्स. प्योर फैक्टर बेस्ड अगर हम बात करेंगे इंडाइसेस के नंबर्स का, तो momentum obviously has been standalone one of the better factors year after year. But has it done all the years? The answer is no. There could be equal number of years where it's underperformed. So you have to be ready to accept both sides. Only then you can do it yourself. Yes, this is a very good message for our audience. So sir, I have heard that Nippon AMC is also coming up with an active momentum fund. Right. So ये नाम मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है. It is active and momentum. Right. So is this related to active passive या कुछ और meaning है इस fund का, इस name का? Sure. So it's a interesting concept which we wanted to bring and showcase to our investors. So what we are trying to do, as I said, within all the factors, momentum का जो track record है काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे समय में मोमेंटम भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है, विच इज़ टिपिकली जब आपके मार्केट में शिफ्ट्स दिख रहे हैं आपको. अभी एक दौर चल रहा था मार्केट का बुल फेज का, मान लीजिए 2023 मिड से शुरू हुआ, इट लास्टेड टिल 24 सितंबर, सो इट वाज अ बिग बुल रन. इवन बिफोर दैट वी हैव सीन वेरियस सिनारियोस
and then the market suddenly shifts. Right. So when the sudden shifts happen, or we call it regime shifts in market happen, various reasons. हो सकता है मार्केट बुल से बेयर फेस में चला गया, या फिर बड़ा कुछ मैक्रो इवेंट हो गया, जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कभी हुआ था, कभी पैंडेमिक आया. तो इन सब समय में मोमेंटम जो ट्रैक करते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बिकॉज मोमेंटम इतना जल्दी समझ में नहीं आता है कि चलो ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, आपको रिस्क कट करना चाहिए. तब तक आपका पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट बहुत भारी हो सकता है. By the time हमें पता चले कि क्या हो रहा है, तब तक we would have already got some losses. Yes. And by the time you cut your losses, also it will be little too late. So we thought if we can have a product which is more actively managed, which rides on momentum, we not even for a moment we are suggesting momentum is bad. We are saying momentum is good, but momentum can be better. How do we do that better part? So that is the entire effort of coming out with an active momentum kind of fund. तो पहली बात तो momentum में दो तीन आप बोल सकते हो limitations है. I will not say it's a negative, but limitations which happens with any kind of investment. Any fund or any kind of investments, correct? So what are these limitations? So one of them is typically regime shifts, which I told you. Momentum fails or moves with a lag. ऐसा नहीं कि मोमेंटम समझ नहीं पाता, मोमेंटम समझता है उसको भी, लेकिन तब तक थोड़ा समय निकल जाता है. सर म्यूचुअल फंड्स आल्सो हैव द परमिशन टू शॉर्ट इट आउट, राइट? सो अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डाउन जा रहे हैं, सो आई कैन टेक अ पुट, लाइक आई कैन सेल अ कॉल और आई कैन बाय अ पुट, आई कैन short the stocks as well. You can do that. So both the sides, a fund manager, they have the possibility to earn it out, right? चाहे upside trend or downside trend हो. You can do that. Theoretically, what you're saying is right, but उसके अंदर भी काफी सारा limitations है for a mutual fund, because obviously the regulator doesn't want mutual fund to become too risky for the investors. तो उसमें आप जितना भी derivatives exposure है mutual fund के अंदर, all of them have to be hedged. So which means I own that stock, I short that stock. So I cannot do a naked kind of short. Okay, मैं covered call ही ले सकती हूँ. हाँ, something like that. So तो basically the idea is उसमें आप बहुत ज़्यादा differential नहीं ला पाओगे, correct? What you're saying practically. So here what we're trying to do is, one of the attempt is to try and understand the regime shifts better. Also one more. How do we explain regime shift? Yeah, regime shift is something which is like market today is in a particular phase, or it was in a particular phase of bull phase where everything was just moving up, correct? Right. Suddenly the trend changed. Even before you know the markets are down 15-20%, correct? So that's a shift which probably pure momentum, which is price momentum. When we say momentum, it is price momentum. It is only recognizing price. So momentum as a factor, वो सिर्फ आपको प्राइस ही देखेगा और कोई फैक्टर को कंसिडर नहीं करेगा जब आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे. So not fundamental factors of the company. फंडामेंटल नहीं, पूरा टेक्निकल फैक्टर है मोमेंटम. ये प्योरली टेक्निकल है, प्राइस अप डाउन मूवमेंट पे ही हम फोकस करेंगे. ठीक है, ये एक चीज हो गया. सेकंड चीज हो गया आपको मोमेंटम के अंदर, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ प्राइस ही हम देखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे कंपनीज का भी सिलेक्शन हो स्टॉक्स में या आपके पोर्टफोलियो में आए मोमेंटम जिसका स्कोर काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि फंडामेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कहीं ना कहीं अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको. राइट. लोगों ने एक होप रैली चला है, क्रेज आ गया है, कोई क्रेज आ गया, कोई नया थीम आ गया मार्केट में जो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको थीम को लेके सबको चलना है, या फिर ग्लोबली कोई थीम चल गया है उसको देख के इंडिया में लग रहा है ये 2-3 स्टॉक है, जैसा सेमीकंडक्टर्स का भी एक दौर चला, एआई का एक दौर चला. तो इंडिया में कोई भी कंपनी जिसमें के साथ एआई करके नाम जुड़ा हुआ, लोगों को लगे ए भी एआई में अच्छा कर लेगा तो उसको खरीद लेगा. बट फंडामेंटल अगर स्ट्रेंथ नहीं है, इट डजंट हैपन फॉर लॉन्ग कि आपका अर्निंग्स और आपका रिटर्न स्टॉक रिटर्न्स में इतना बड़ा डाइवर्जेंस बहुत समय तक नहीं चलता है. कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन आपको फाइनली अर्निंग्स जब तक नहीं है, फिर आपका रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल है. yes, फिर वो मोमेंटम नहीं बनेगा. कुछ हद तक वो क्रेज होगी, तब तक वो प्राइस अप जाती रहेगी. बट द मोमेंट पीपल रियलाइज कि यार ये पीछे की कंपनी में इतना कुछ नहीं है, कुछ इतना रेवेन्यू नहीं है, सो एट वन पॉइंट दैट विल स्टॉप. करेक्ट. सो व्हिच मींस मोमेंटम, वन ऑफ द लिमिटेशंस कैन बी दैट एट टाइम्स इंफीरियर क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी वाले बिजनेसेस भी मोमेंटम के पार्ट बन सकते हैं. तो हमारी कोशिश था कि ये दोनों चीज को हम कैसा बेहतर कर सके फॉर आवर इन्वेस्टर्स. So we said we will look at 2 or in fact 4 different factors, but primarily 2 factors. One is momentum itself, which is going to be the core. 50% weight on average will be to this factor, which is price momentum. जहाँ पे हम 6 महीने का और 12 महीने का जो प्राइस का मूवमेंट है उसके बेसिस में हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट उसके हिसाब से रैंक करेंगे. साथ ही साथ हमने और एक वेरिएबल जोड़ दी इसमें, विच इज कॉल्ड एज अर्निंग्स रिविजन या अर्निंग्स मोमेंटम. तो अर्निंग्स मोमेंटम क्या है? अगर हम प्राइस मोमेंटम को हम बोलते हैं कि मार्केट विजडम है, मतलब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स खरीदते बेचते उनका विजडम दिखता है अपने को जो प्राइस मोमेंटम है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये हमको अच्छा लग रहा है, तो उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, विच इज व्हाट वी डू. बट वी थिंक देयर इज वन मोर स्कोप टू लुक एट एक्सपर्ट विजडम. सो व्हाट इज एक्सपर्ट? हु इज द एक्सपर्ट? एक्सपर्ट हियर इज द रिसर्च एनालिस्ट, द ब्रोकिंग फर्म्स जो इन कंपनियों का डे इन डे आउट रिसर्च करते हैं. तो इन सारे कंपनियों को लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो उनका एक अर्निंग एस्टिमेट होता है कि इतना अर्निंग्स इसमें बनेगा, उसके हिसाब से एक प्राइस टारगेट होता है. सडनली मान लीजिए कुछ चेंज होता है, जैसे अभी रिसेंटली बजट आया,
Right. करेक्ट. द फाइनेंस मिनिस्टर केम एंड अनाउंस हम टैक्स कट करेंगे, तो कुछ सेगमेंट्स विल गेट बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली, 12 लाख के तक इनकम में बेनिफिट मिलेगा, तो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग विच केम इन. सो विच मीन्स कि कंजम्पशन बढ़ सकता है. Right. कुछ जगह पे सेविंग्स बढ़ेगा, तो शायद इन्वेस्टमेंट कंपनियां या बैंक. इवन आरबीआई ने अभी रेट कट किया है, सो अगेन पीपल मे टेक सम बोरोइंग्स टू बाय फ्यू गुड्स जो वो अदरवाइज नहीं करते थे. तो मोमेंट दैट काइंड ऑफ एन इवेंट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज कि जो एनालिस्ट बैठा हुआ है और मान लीजिए वो कोई कंज्यूमर कंपनीज ट्रैक कर रहा है, सडनली उसका जो एस्टिमेट था अर्निंग्स का उसमें चेंज हो जाएगा, मे बी इन दिस केस मोर पॉजिटिव चेंज, सो देयर विल बी अ रिवीजन विच विल हैपन. तो उसके बेसिस पे भी आप मोमेंटम देख सकते हो. जैसे हम प्राइस मोमेंटम देखते हैं, अर्निंग्स का भी रिवीजन, टारगेट का भी रिवीजन, टारगेट प्राइस का भी रिवीजन, इस पे भी एक मोमेंटम दिखेगा आपको. करेक्ट. सो वी ऑल्सो ट्रैक दैट. सो व्हाइल मोमेंटम इज प्योरली टेक्निकल, earnings momentum brings the sentiment or the qualitative part to it. Right. It gives you something which is more fundamental. Along with being technical, Right. it also gives something more fundamental. Yes. तो वहाँ पे हम लोग consensus view लेते हैं. So we get a good consensus view of more than 200-300 people trying to put their estimates, correct? Okay. So there are a lot of systems which give you this. Right. So that helps us understand कि इस कंपनी का प्राइस मोमेंटम तो अच्छा है, लेकिन क्या अर्निंग्स मोमेंटम भी सपोर्ट कर रहा है इसको. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्राइस पे चल रहा है और अर्निंग्स तो है ही नहीं. राइट. सो दैट हेल्प्स अस एंश्योर द पोर्टफोलियो क्वालिटी इज मेंटेन. Right. So this is one. So I only address the part of the question, correct? I also said कि regime shifts हो रहा है, मार्केट का जो दौर बदलेगा उसको हम कैसा समझ लें, उसको हम पोर्टफोलियो में कैसा इनकॉर्पोरेट करें. Right. तो उसको समझने के लिए आपको शायद 2 मिनट मेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. आई विल ट्राई टू मेक इट इवन मोर सिंप्लीफाइड, ताकि आपके व्यूअर्स भी समझ सके इसको. जी. सो व्हाट वी डू इज वी यूज 2 फैक्टर्स, बट दिस आर बोथ कंडीशनल फैक्टर्स. ओके. तो नॉर्मली हम जब मॉडल बनाएंगे, आप मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है मार्केट में, ना बहुत बुलिशनेस है ना बेरिशनेस है, ऐसे मार्केट माहौल में 50-50 एलोकेशन होगा मेरे मॉडल के हिसाब से. 50% वेट, जब कोई भी स्टॉक को मैं रैंक करूंगा, 50% वेट दूंगा उसको प्राइस मोमेंटम पे, और 50% जाएगा उसका अर्निंग्स मोमेंटम में. फंडामेंटल्स समवॉट मिक्स ऑफ बोथ, टेक्निकल एंड इक्वल वेट. मतलब प्राइस मोमेंटम को भी उतना ही वेट मिलेगा जितना मेरे अर्निंग्स मोमेंटम को मिलेगा. तो दोनों को मैं साथ साथ कंसिडर करूंगा. अब इसके अंदर मार्केट के शिफ्ट मुझे पकड़ने हैं. मार्केट में जब बदलाव आ रहे हैं, हाउ डू आई measure that and try and incorporate something in this thing. So I look at 2 different ratios here, 2 different variables बोल सकते हैं आप उसको समझने के लिए. एक होता है एक सेंसेक्स टोटल मार्केट कैप. सेंसेक्स का एक मार्केट कैप. सेंसेक्स क्या है? टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैप. सो यू कैन से इसको मेगा कैप बोल सकते हैं आप. लार्ज कैप से भी बड़े होते हैं, तो मेगा कैप इंडेक्स व्हिच शोज मी द अंडरलाइंग मोमेंट. करेक्ट. और उसको हम कंपेयर करेंगे पूरे मार्केट के, ओवरऑल मार्केट के, पूरे इक्विटी, इंडिया के इक्विटी मार्केट के मार्केट कैप से. तो उससे क्या समझ में आएगा कि जब भी लोगों में एक तरह का आप बोल सकते हो बहुत बुलिश फेस चल रहा है मार्केट में, जहां पे सबको लगता है कि इक्विटी में सिर्फ पैसे लगाना है, पैसे तो बन जाएंगे, वैसे वाले माहौल जो अभी देखा हमने पिछले 18 महीने देखा, मार्च 23 से लेके सितंबर 24 के बीच में हमने देखा. दैट वाज द पीरियड वेयर एनीबॉडी कुड पुट एनीवेयर इन इक्विटी, स्टिल मेक रिटर्न्स इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द बिजनेस वाज डूइंग. करेक्ट. सो दैट इज अ टाइम व्हेन पीपल कैन गेट लिटिल टू ग्रीडी. जैसा हम बोलते हैं कि ग्रीड एंड फेयर आर ओनली 2 इमोशंस जो मार्केट में चलते हैं. एक तो ग्रीडी बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो कंप्लेसेंट, कि चलो पैसा तो बनना ही है इक्विटी में, हमको तो 20% मिलना ही है, कि यार मैंने ये स्टॉक में डाला, मैंने इतना कमा लिया, डबल तो होना ही है. तो वैसे वाले जो सिचुएशन है, तो वैसे वाले सिचुएशन में ये रेशियो क्या दिखाएगा आपको कि सेंसेक्स का मार्केट कैप रेशियो जो है काफी लो पे चला गया. लो के मतलब नॉर्मल रेंज इसका जो है वो मूव्स बिटवीन 42 to 48. सो व्हेन इट्स बिटवीन 42 to 48, इट विल नेवर गिव अ सिग्नल. सो व्हिच मींस 42% ऑफ टॉप 30 is what it is from an overall market cap perspective. But when it goes down, for instance in the scenario where everything is bullish, तो आपके जो ब्रॉडर मार्केट जिसको हम बोलते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, वैसे कंपनियों का मार्केट कैप काफी बढ़ेगा. और शायद लार्ज कैप में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों के, क्योंकि जहां पे जल्दी रिटर्न बन रहे हैं तो लोग उसी की तरफ जाएंगे, फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप्स. तब आपका ये रेशियो घट जाएगा. तब ये रेशियो घट जाएगा. जैसे कि अभी के हाल फिलहाल की बात करें तो लगभग 35 या 35-37 के बीच में इसका रेंज होगा. सो विच टेल्स यू पीपल आर बिकम फेयरली कंप्लेसेंट. उनको लग रहा है कि रिटर्न तो बनने ही बनने इक्विटीज में. तो दैट इज अ टाइम टू बी कॉशियस. एंड ये सिग्नल जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं, अगर ये मॉडल हम चलाते पहले जून में हमको सिग्नल मिल जाता था, जून जुलाई के आसपास, कि ये समय है आपको पोर्टफोलियो में रिस्क कम करो, रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क या फेड द मोमेंटम. अगर इसको इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम को फेड करो, क्योंकि मोमेंटम कैन बी टू रिस्की इन टाइम्स व्हेन द मार्केट शिफ्ट्स आर हैपनिंग. तो उसको हम कैसे करेंगे? उस समय में हम और एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है मिनिमम वॉलेटिलिटी.
ओके मतलब एक ही स्टॉक को हम 3 तरीके से देखेंगे, पहला प्राइस मोमेंटम पे देखेंगे, फिर अर्निंग्स पे देखेंगे, अब एक नया फैक्टर हमने इसमें जोड़ दिया, इसका नाम है मिनिमम वोलेटिलिटी। मिनिमम वोलेटिलिटी, हाँ, मिनिमम। ओके मैं अभी वाला पार्ट री एक्सप्लेन करती हूँ जी, ठीक है, ताकि मैं लॉस्ट ना हो जाऊँ। जी बिल्कुल। आई हैव अंडरस्टूड दैट आप सेंसेक्स देखते हो विच इज़ द मेगा कैप्स 30 कंपनीज, वी हैव न्यूमरस कंपनीज और हमने 30 कंपनीज को देखा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं इसे इलिस्ट्रेट करना चाहूँ तो दीज 30 कंपनीज आर होल्डिंग 42% ऑफ मार्केट शेयर। इज इट व्हाट दे वर सेइंग? आपने कुछ 42 48 आपने मुझे पैरामीटर बताया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। सो बेसिकली दैट इज नॉट द मार्केट शेयर, इट इज द रेशियो which is the normal range for this vis-a-vis the total market cap that moves between 42 to 48% के बीच में। This is just for understanding purpose। ठीक है, मुझे समझा कि बाकी शेयर, बाकी सारा पैसा लोगों ने स्मॉल मिड में डाला है, 42% जितना यहाँ पे है। ओके, इधर लेमैन लैंग्वेज में मैं लिखा रही हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपने कहा कि जब बुल फेज आता है, बुल फेज इज व्हाट, कि लोगों को लग रहा है कि अरे स्मॉल मिड माइक्रो सब में डालो बहुत पैसा बनेगा, तो लोग ज्यादा कैपिटल उस एरिया में इन्वेस्ट करने लगे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस शूट अप हुई है एंड लार्ज कैप का अमाउंट नेचुरली कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 100 रुपीज यहाँ पे लोगों ने डाल दिए तो अपने आप बिना कुछ किए ही ये बेचारा नीचे आ गया। बिल्कुल। सो आपने कहा कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि पीपल आर गेटिंग टू बुलिश, सो नाउ देयर इज अ चांस फॉर रिवर्सल। सो आपने ये कहा कि आप जो ये मॉडल देख रहे हो, आपको ओके समवेयर राइट नाउ द मेगा कैप्स आर इन 37, व्हिच मींस कि टू मच मनी वाज पुट इन दिस मिड स्मॉल माइक्रो। परफेक्ट। ओके, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें भर चुका था। सो नाउ देयर इज अ ट्रेंड फॉर रिवर्सल। उससे आपको इंडिकेशन आया कि भाई अब ये गिर चुका है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे आ चुका है। नाउ इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ दिस एंड मे बी कम बैक टू मेगा कैप्स, समथिंग लाइक दैट। नॉट रियली, इट इज मोर ऑफ अ सिग्नल कि मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, स्पेशली एक करेक्शन फेस आ सकता है उसमें, क्योंकि टू मच एक्सपेक्टेशंस हैव बीन बिल्ट इन द मार्केट। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब उसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले सिनेरियो, जब हम देखते हैं कि हमारे नुक्कड़ के आसपास के सब लोग बना रहे हैं रिटर्न्स, हम छूटने के, हम रहने के, तो हम भी एंटर कर लेते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यूएशंस। सो दैट इज इट गिव्स वन सिग्नल। तो उस समय में हम क्या कोशिश करते हैं, वी ऐड समथिंग कॉल्ड एज मिन वॉल। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टॉक को 3 चीज पे रैंक करेंगे। राइट। तो पहला प्राइस पे रैंक करेंगे, फिर अर्निंग्स पे रैंक करेंगे, और उसके साथ साथ हम मिन वॉल पे भी रैंक करेंगे। मिनिमम वॉलेटिलिटी मतलब होता है ऐसे स्टॉक्स को देखें जहां पे नॉर्मली उन पे उतार चढ़ाव कम होते हैं, जिनका वॉलेटिलिटी कम होता है, थोड़े से स्टेबल, तो उनका रैंक थोड़ा बेहतर आ जाएगा। तो व्हेन यू डू द फाइनल स्टॉक सिलेक्शन दे विल गेट अ बेटर रैंक। सो ये तो हमने बात की वन सिचुएशन की। अब मान लीजिए उल्टा हो जाता है कि आपका सेंसेक्स का जो रेशियो है टोटल मार्केट कैप से, वो 48 से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 50 हो जाता है, 55 हो जाता है, तो वो क्या समझाएगा आपको, व्हिच मींस कि बहुत जन सेफ्टी को फ्लाई कर चुके हैं। बिल्कुल, दे हैव मूव्ड फ्रॉम दिस रिस्की एंड दे हैव मूव्ड टू सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी एज वी से, इसलिए इनका वेटेज अपना बढ़ चुका है और इनका वेटेज कम हो गया है। बिल्कुल, यस। सो दिस आल्सो कैन हैपन इन एक्सट्रीम सिचुएशन। 18-19 में हमने देखा, 2018-19-20 तक भी हमने देखा था सिचुएशन जहां पे लोगों को लग रहा था कि ओवरऑल मार्केट में शायद इतना रिटर्न नहीं बनेगा, कंसर्न्स बहुत है, तो हम बड़े कंपनीज में ही जाके छुप जाते हैं। सो वो वाले सिचुएशन भी एक टाइम के बाद आपको एक मीन रिवर्शन या रिवर्सल का एक इंडिकेशन मिलता है आपको वहां से। सो विच इज व्हाट वी ट्राई टू कैप्चर। सो इफ इट रिवर्सेस देन मिनिमम वॉलेटिलिटी तो वहां पे आएगा नहीं, क्योंकि आपको तभी तो अपसेट कैप्चर करने हैं, तब आप क्या करेंगे, तो वी ऐड वन मोर फैक्टर कॉल्ड एज बीटा। बीटा हम सब समझते हैं, बीटा होता है मार्केट रिस्क। तो आप क्या करोगे, कितना मूवमेंट है मेरा स्टॉक का एज कंपेयर्ड टू द मार्केट। तो नॉर्मली आप बोलोगे कि अगर कोई परफेक्ट कोरिलेटेड है तो उसका बीटा 1 होगा। राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हमको लग रहा है कि मार्केट अब पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम उन स्टॉक्स को ज्यादा रैंक देंगे जिसका बीटा हाई है मार्केट से, हाई बीटा स्टॉक्स, मोर देन 1, तो दे विल फीचर इन द पोर्टफोलियो। तब उस समय मिनवॉल नहीं आएगा। तो शायद एक समय में एक बार बीटा आएगा या फिर मिनवॉल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। राइट। सो जब मार्केट्स डाउन होगी या नेगेटिव होगा तब हम मिनिमम वॉलेटिलिटी के उधर जाएंगे, बिकॉज विच इज सेफ। कि मार्केट्स गिर रही है तो हम ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे जो बहुत वॉलेटाइल नहीं है। लेकिन जब अब मार्केट मोमेंटम गेन कर रहा है, इट इज गोइंग अपसाइड, सो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड पुट अप इन स्टॉक्स, पुट अप इन द स्टॉक्स जिनका बीटा मोर देन 1 है, ताकि हमें फटाफट हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाए। बिल्कुल। लेकिन हर समय में प्राइस मोमेंटम और अर्निंग्स मोमेंटम होगी इसके अंदर। सो इट इज नेवर दैट वी विल छोड़ देंगे उनको, वो दोनों हमारे पिलर है, उनको हमेशा ही रहेगा पोर्टफोलियो में, लेकिन थोड़ा वेट में कम ज्यादा हो सकता है। सो व्हाट विल डू इज मैक्सिमम 40% ऑफ द पोर्टफोलियो वेट, और मॉडल का जो वेट है मैक्सिमम 40% हो सकता है बीटा में या मिनवॉल।
तो 60% तो होना ही होना है प्राइस और अर्निंग्स में, और हमेशा इक्वल रहेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अर्निंग्स को बढ़ा दिया प्राइस को कम कर दिया, वैसे नहीं करेंगे। हमेशा प्राइस और अर्निंग्स को एक साथ लेके चलेंगे, मार्केट को भी उतना ही रेस्पेक्ट देंगे जितना एक्सपर्ट को देंगे हम लोग। राइट। तो इस तरह से हमने मॉडल बनाया है। ओके, वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा ये नई चीज़ सीख के, नई चीज़ सुन के। सो वेरी वेल एक्सप्लेन सर। तो इसमें हमने काफ़ी सारे बैक टेस्टिंग भी की, बिकॉज आई थिंक प्रॉब्ली पीपल वांट टू नो। तो आई विल नॉट गो इन द नंबर्स एंड ऑल, बट द आइडिया वाज जस्ट टू से दैट कि इसमें हमने देखा कि जो पोटेंशियल है इसका, जैसे मैंने कहा अभी रिसेंट जो वॉलेटिलिटी भी चल रही है, शायद उस समय में प्रोडक्ट होता तो पॉसिबली द मॉडल वुड हैव इंडिकेटेड कि जून जुलाई में आप थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाओ। करेक्ट, पॉसिबली जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में। इनफैक्ट लास्ट 3-4 महीने में आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी चली सितंबर के बाद, सितंबर एंड के बाद। तो उस समय में हो सकता है पोटेंशियल दिस वुड हैव डन बेटर, और द एक्सपीरियंस फ्रॉम अ प्रोटेक्शन पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लेके आता उस समय, क्योंकि मार्केट खुद गिर रहा है तो कहाँ से रिटर्न्स लाएगा, लेकिन आपका जो डाउन साइड प्रोटेक्शन वो शायद बेहतर कर सकते थे इसके अंदर। सो सर, इज देयर एनी रीजन कि निप्पॉन ये टाइम पे ये फंड को लेके आ रहा है? Is this an indication कि मार्केट रिवर्स हो रही है? I don't know. नहीं, टाइमिंग ऑनेस्टली देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग, स्पेशली हम म्यूचुअल फंड्स हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज टाइम इन द मार्केट विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इट्स नथिंग टू विद जस्ट कोइंसिडेंटली कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और इस फंड आ रहा है, बट वी थिंक एज अ कंसेप्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो प्रॉब्ली वी वांटेड टू वेट फॉर सम टाइम, जैसा आपने कहा कि काफी लोग मोमेंटम के चाहने वाले हैं इन्वेस्टर्स में, दे लाइक मोमेंटम एज अ फैक्टर। तो वी थॉट दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज लॉट ऑफ people over the last 1 year with lot of smart beta coming in, index funds आए, ETFs आए, तो अभी लोगों को थोड़ा आइडिया है कि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है। राइट। तो उसके पहले अगर हम इसको लाते शायद उतना समझ नहीं पाते, अब लोग समझते हैं कि मोमेंटम क्या है। नाउ वी आर सेइंग कि मोमेंटम को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। ओके, समझा। तो सर आजकल ये जो रिसेंटली न्यूज़ बहुत चल रही है, ठीक है, CIO ऑफ अ वेरी फेमस पॉपुलर म्यूचुअल फंड AMC, उन्होंने कहा है कि आप मिड और स्मॉल कैप में अपनी SIP स्टॉप कर दो अगर आप 20 ईयर्स तक नहीं रहने वाले हो तो। ना उनकी ये स्टेटमेंट में ना पूरी हलचल हो गई है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स आके मुझे पूछ रहे कि जील हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी SIP स्टॉप कर देनी चाहिए मिड या स्मॉल में। So I'm like, यार, what's happening? I mean, traditionally we have always learned कि if you're a long-term investor, stick to it, stick to your risk profile, stick to your timelines of the goal. But ये statement ने लोगों को हिला दिया है. So what will you suggest to an investor? Sure. So basically, without going into the statement per se, the idea is to understand. Currently valuations obviously सस्ते नहीं है मिड स्मॉल कैप में, काफ़ी लोग जानते हैं। द रिटर्न्स हैव बीन एक्सीलेंट फॉर द लास्ट 3-4 years, बट कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस जो था विज़ा वी दी लार्ज कैप्स, द मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में एक्सीलेंट रिटर्न्स बने। बट हम नॉर्मली देखते हैं कि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा चलती है तो कहीं ना कहीं उसका रिवर्जन होता है, मीन रिवर्जन का कंसेप्ट है। तो वॉलेटिलिटी कैन बी हायर बिकॉज अभी बहुत सारे माहौल जो हम बोलते हैं, स्पेशली मैक्रो फैक्टर्स जो ग्लोबली भी हो या इंडिया में हो, शिफ्ट दिख रहे हैं हमको। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया में थोड़ा ग्रोथ स्लोडाउन दिख रहा है, ग्लोबली US में पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, तो नेचुरल है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है विदाउट इवन गोइंग इनटू स्टॉक प्राइसेस, जस्ट अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो उसके कारण लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिकैलिब्रेट करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि हम क्या इतना रिस्क लेना चाहिए या थोड़ा रिस्क कम कर दे। तो उसके चलते हुए आपके मार्केट में उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है उस समय में, ग्लोबल सिनेरियोज, इवन डोमेस्टिक शिफ्ट। डोमेस्टिक में थोड़ा ग्रोथ स्लोडाउन दिखा, GDP नंबर्स हैव बीन लिटिल वीक लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में, थोड़े रिजल्ट्स पुअर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के, विच ऑल इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो ऑल दिस इज लिंक्ड। तो मार्केट अकेला नहीं चलता, मार्केट चलता है इन सारे फैक्टरों के साथ। तो जब भी ऐसे शिफ्ट्स होते हैं मार्केट में, that's a time when you see the more impact is felt on the mid cap and small cap segments, because these are like participated typically by more retail kind of investors, and these are slightly illiquid also. Some of the names, especially in the small caps, could be very illiquid. Illiquid मतलब आप जब बेचना चाहते हो तो आपके भाव में नहीं बिकेगा, हाँ, तो आपको फिर प्राइस तोड़ के बेचना पड़ेगा, तो आपको काफी डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। तो ऑल दैट कैन हैपन। सो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट कि आप बेचने जा रहे हो, फिर और 2-3 लोग आ रहे हैं तो प्राइस सडनली घट गया, तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, विच इज ऑल ऑफ अस नो। इनफैक्ट जब एलोकेशन भी करते हैं लोग को, हम बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो में अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स रखो, लार्ज कैप भी रखो, मिड भी रखो, स्मॉल भी रखो, लेकिन ऐसा रिस्क आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप उसको मेंटेन करो। तो सडनली लोगों ने बोला कि मेरे को 60-70% लार्ज कैप रखना है पोर्टफोलियो में, उनके पोर्टफोलियो में 60-70% मिड स्मॉल कैप हो गया, और अब वॉलेटिलिटी दिखेगी तो नेचुरल है उनके पास तो रिस्क एपेटाइट था नहीं, तो वो भी आएंगे मार्केट में बेचने के लिए, तो इट कुड लीड टू हायर वॉलेटिलिटी। लेकिन अगेन इफ यू लुक बैक एट द हिस्ट्री, एंड वी हैव अ रीजनेबली गुड हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट नाउ,
तो सेंसेक्स 40-45 ईयर्स से इंडिया में अवेलेबल है जी। बहुत सारे वॉलिटिलिटी हमने देखे हैं, लेकिन जितना भी हमने देखा कि अगर कोई रोलिंग बेसिस पे एनालाइज करता है और 3 साल 5 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग दी डाउन साइड और दी नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है वो जितने आपका टाइम बढ़ता है मार्केट में उतना कम होते जाता है। Right. तो मान लीजिए 5 साल में मे बी 5-6% टाइम नेगेटिव देखेंगे आप, 10 साल में शायद 2-3% ही नेगेटिव देखेंगे। सो दैट इज हाउ इट टिपिकली हैपेंस विद इक्विटी एज एन एसेट क्लास। इफ यू लुक एट इवन मोर closer examples, so we have a product called Nippon India Small Cap Fund, which we have been running since 2010. And इसके returns भी बहुत अच्छे रहे. I was even checking the standard deviation and sort Sharpe ratio of these fund. So this is ranking it much higher as compared to other funds. Just I keep on studying. Yeah, without going into the returns also here, just I'm saying it's a fund I just study the risk parameters. मुझे उसमें ज़्यादा interest है कि वो study करो. Returns तो बन जाएंगे अगर आपके risk parameters सही होंगे तो. बिल्कुल. तो processes बहुत important होते हैं. Yes. And this fund has got a track record, अभी 15 साल का track record almost होने वाला है इसका. So 2009-2010 में शुरू हुआ था. So almost 15 years track record. So we have seen even this product when we launched, and then there are a lot of periods where the fund had seen sharp correction because of the markets, not necessarily only because of the fund. बट बिकॉज द मार्केट इटसेल्फ करेक्टेड. 2018 का मैंने बात करा, 2018 से 20 के बीच में ऑन एब्सोल्यूट बेसिस क्लोज टू 50% इरोशन देखा हमने एनएवी में. तो एनएवी मान लीजिए उस समय 45 या 50 होंगे तो 25 पे आ गया, समथिंग लाइक दैट. तो इतना बड़ा करेक्शन हमने देखा इसके अंदर. तो नेचुरल है कि आप बोलोगे क्या करेंगे इन्वेस्टर, एंड दिस करेक्शन हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years. 18 में शुरू होकर 20 तक चला करेक्शन का फेज टिल कोविड हैपेंड. तो सम पीपल विल हैव पैनिक्ड, but somebody who said no, I am going to stick around for another 3 years, another 2 years. So what happened? The next 3 years भी रुकते थे लोग जिनका 50% इरोशन दिखा फ्रॉम द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. उनका ना केवल पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होकर एब्सोल्यूट बेसिस पे 80% बन गया, कंपाउंडिंग बेसिस में 14-15% या 13-14% के पीछे कंपाउंडिंग बन गया. एंड इफ दे हेड टिल नाउ, जो 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी तक अगर होल्ड करते हैं करीबन 200% पोर्टफोलियो बढ़ जाता है एब्सोल्यूट बेसिस पे, या कंपाउंडेड बेसिस पे आप देखोगे उसमें 17-18% का कंपाउंडिंग बन जाता है. 2018 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा पहले ऑलमोस्ट डाउनफॉल में भी होल्ड करके रखा होता. करेक्ट. एंड दे वुड हैव सीन अ 50% करेक्शन. तो इट्स लाइक सेइंग कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, 100 का 50 बन गया था 2 साल में. उसके बाद इफ दे जस्ट हेल्ड फॉर अनदर 2-3 years, not only this 50 would have been recovered, something more on above that you would have got back. So maybe that 100 would have still reached 200 or 300. Abne 200% gains ka, right? So that 100 would have still reached 300 rupees. That is what you would have seen. Even if I would have just kept on holding without getting panicked. Yes. So what is the conclusion of this? जो हमारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं कि भाई हम मिड कैप स्मॉल कैप के SIP स्टॉप कर दे, आप उनके लिए स्पेसिफिकली क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल. तो ऐसे बहुत सारे दौर देखे हमने मार्केट्स के अंदर. इवन SIPs 3 year SIPs, अभी तो केवल 1 year SIP नेगेटिव हुआ है, करेक्ट. राइट. बट हमने देखा कि बहुत सारे पीरियड्स आए मार्केट में, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 के बाद का दौर था, उस समय 3 साल के SIPs रिटर्न्स नेगेटिव हुए थे. पैंडेमिक के टाइम 3 साल के रिटर्न्स नेगेटिव हुए थे. बीच में 2013-14 के आसपास 3 साल के रिटर्न नेगेटिव हुए थे. तो ऑल दिस फेसेस वी कुड सी दैट द रिकवरी हैपेंस वेरी फास्ट वंस दिस सेट्स इन. अभी तो केवल 1 साल का रिटर्न नेगेटिव की बात करें, 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स देखे लोगों ने. बट फ्यू ऑफ द पीपल हु हेल्ड इट फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 1 year 2 year, the returns not only turned positive but positive by a good double digit kind of margin. So I'm not saying every time the returns will work like that. All I'm trying to give suggestion to the people is don't get panic. Be patient. जब आप इक्विटी में आते हो, I'm sure आप लोग भी बोलते हो, इन्वेस्टर भी समझते हैं कि उनको 5 से 5 to 7 years देना है एक साइकिल खेलने के लिए. किसी का अगर उतना पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, तो ही आप इक्विटी में एंटर कीजिए, वरना आप डेट में या लिक्विड में, हाइब्रिड में स्टिक करके रखिए. बिल्कुल. और आप साथ ही साथ देखिए कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है. तो इंडिया स्टिल ग्रोइंग. तो हालांकि थोड़ा ग्रोथ स्लो हुआ है इंडिया में, इंडिया स्टिल वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड. इट कंटिन्यूज टू बी मूविंग टुवर्ड्स द टॉप 5. इट्स ऑलरेडी इन द टॉप 5 बाय GDP साइज. पॉसिबली इट विल बिकम टॉप 3 इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया, लाइक डेमोग्राफी में इंडिया का स्ट्रेंथ है. आप आपके आसपास देखो, मेट्रो बन रहा है. अराउंड मेरा एक और क्वेश्चन बिल्कुल है. बिल्कुल. हाँ. सी, बहुत सारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं. जी. हर कोई कहता है कि यार इंडिया तो ग्रोइंग नेशन है, आप बस पैसा डालो, मार्केट्स ग्रो हो जाएंगे. बट हाउ मच इज द रियल कोरिलेशन? कितना कोरिलेशन इस बीच में कि भाई इंडिया एज अ कंट्री ग्रो हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत लाइक द पॉलिटिक्स आर encouraging people to start their own businesses, फंडिंग आ रही है, सो ऑफ कोर्स कंपनीज ग्रो हो रही है. बट हाउ इज
हाउ मच इज दैट को रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट्स? क्या अश्योरेंस है कि भाई स्टॉक मार्केट भी उतना ही परसेंट से ग्रो होगा जितना इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है? सो लोग ब्लाइंडली आज इन्वेस्ट कर रहे हैं. इवन आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज हैपनिंग. लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको पहले पता नहीं था, जिन्हें पहले, मेरे खुद के ग्रैंडफादर से जब मैं बात करती हूँ तो पहले मुझे बोलते थे कि यार कितनी कंपनीज आके उठ गई है ऐसे तो, बट नाउ ही हिमसेल्फ इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. उन्हें वो फेथ आ रहा है. So I'm happy to see that, but how true is that statement कि just participate in India growth story और आपका भला हो जाएगा? How true is that? So there is some truth in that for sure. Okay. But markets and economy always may not move in the same direction. So there can be divergence which can happen from a near term perspective. लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो 5 से 7 साल 10 साल के लोग डाल रहे हैं, 20 साल के लोग डाल रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको ये कोरिलेशन बहुत ही बेटर दिखेगा आपको. तो मार्केट फाइनली हम क्या बोलते हैं, मार्केट अर्निंग्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है. तो मार्केट में एक चीज़ मार्केट को अच्छा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, जो अभी का माहौल है कि ग्लोबली पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, इंडिया में कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ नियर टर्म नंबर्स खराब आ रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए कि क्या अर्निंग्स बन रही कि नहीं. क्योंकि आप स्टॉक मार्केट बोल रहे हो तो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फाइनली आप चाहते हो कि वो बिजनेस बढ़े और अच्छा करे, तब जाके आपका प्राइस बढ़ेगा स्टॉक का और यू विल गेट बेनिफिटेड. करेक्ट. तो बिजनेस अच्छा कर रहा है उसको आप कैसे समझेंगे? अर्निंग से. बिजनेस अच्छा करेगा तो प्रॉफिट अच्छा दिखेंगे उसके. तो बेसिकली अर्निंग्स के साथ कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है. लॉन्गर टर्म बेसिस पे मार्केट रिटर्न्स जो बने हैं वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के आसपास ही बने. तो अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, मार्केट्स भी कहीं ना कहीं डबल डिजिट में उसके आसपास बनेगा. हो सकता है कि मार्केट सेक्युलर नहीं चलेगा, हर साल वैसे नहीं चलेगा. कोई एक साल आपको 30-40% रिटर्न बना के देगा, कोई साल नेगेटिव हो जाएगा. कुछ साल ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हुई है लेकिन मार्केट बढ़ा नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, क्योंकि मार्केट में एंटिसिपेशन में भी स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन पहले ही वो रैली कर चुका हो. करेक्ट. तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जब बजट रिलीज करते हैं तो एक नंबर बोलते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कंट्री के लिए. तो अभी भी वो 10% का एक्सपेक्टेशन है. मान लीजिए आपका कॉर्पोरेट एफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी एफिशिएंसी है, दे आर एबल टू बिल्ड समथिंग मोर एंड पॉसिबली दिस 10 की जगह पे 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ लाए. तो आज शायद कुछ जगह पे लोगों ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया कि इतना अर्निंग्स बनेगा, तो उसके लिए मार्केट अभी थोड़ा रिप्राइस कर रहा है उसको कि हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, अभी रिप्राइस कर रहे हैं, मार्केट में करेक्शन हुआ. लेकिन वापस अगर 12-13% अगले साल आएगा, शायद मार्केट आज उतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा पॉजिटिविटी में. तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के बेसिस में ग्रोथ के साथ ही आपका मार्केट चलेगा. इसका और एक एग्जांपल आप देख सकते हो ग्लोबली. जापान में जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ठप हुआ था फॉर 15-20 ईयर्स, तब इक्विटीज ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया वहाँ पे. तो जहाँ पे इक्विटी में रिटर्न मतलब ओवरऑल ग्रोथ दिखेगा आपको, वहाँ पे इक्विटीज आगे पीछे थोड़ा आगे पीछे रहेगा, एग्जैक्ट साथ साथ नहीं चलेगा, लेकिन कोरिलेशन मिल, देयर विल बी लॉट ऑफ कोरिलेशन. तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको रिटर्न्स बनेंगे, बट यू हैव टू एंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक एसेट क्लास में नहीं डाले, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके नहीं इन्वेस्ट कर दे विद इन दैट एसेट क्लास ऑल्सो. ओके ओके, वेरी वेल. तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें समझी. सो द क्रक्स ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट येस, कहीं ना कहीं जैसे अगर हमारी कंपनीज का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, सो कहीं ना कहीं मार्केट्स भी इंक्रीज होंगे. सो ऑफ कोर्स, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंपनीज विच आर ग्रोइंग एंड स्टे इन्वेस्टेड विद देम. एंड इफ वी आर नॉट सो इक्विप्ड, so then maybe we should resort to mutual funds where the professional fund manager will manage it for us. Right. And also मुझे एक और चीज़ आपसे ये सीखने मिली है कि people should stick to their risk appetite. जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि उनकी रिस्क कैपेसिटी है कि वो 60-70% लार्ज कैप में रखे, उनकी शायद उतनी ही पोटेंशियल है कि वो सिर्फ 30% मिड में स्मॉल में रखे. बट क्योंकि ये फिलहाल वेव चल रहा था, बुल रन चल रहा था, लोगों ने शायद 60-70% रिस्की में डाल के रखा था इंस्टेड ऑफ बीइंग इन देयर. एंड अब जब वो गिर रहे हैं, सो दे आर नाउ गेटिंग पैनिक, क्योंकि शायद उनकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी उतना रिस्क डाइजेस्ट करने की. बट बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग, दे वेंट अलोंग विद इट. सो आई थिंक एवरीवन शुड स्टिक टू देयर रिस्क एपेटाइट. जितना आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, अगर आप उसमें रहते हो तो यू विल इवन गेट अ साउंड स्लीप एट नाइट. राइट. एंड वी लर्न अबाउट मोमेंटम एज वेल. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके, हम एकदम स्टार्ट में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कोई भी मोमेंट को, वो थोड़ा सा बन जाता है, फिर ही हमें पता चलता है कि ओके, नाउ इज द टाइम टू एंटर द स्टॉक. वंस वी सी द फ्लैट लाइन्स कि यार अब ये शेयर ज़्यादा अप जा नहीं रहा है एंड धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, दैट इज़ आवर हिंट कि ओके, अब इसका शायद बुल रन वाला फेज फिनिश होने आया है, नाउ इज द टाइम टू एग्जिट. Am I right? Somewhere close to that. Somewhere. Okay, amazing. And so one last thing, okay, there are many new investors who have joined the markets after 2020. Right. जिन्होंने आज तक हमेशा अच्छे फेज ही देखे हैं and suddenly अलग फेजेस देख रहे हैं. Is there any message that you would like to give to our audience or the new investors?
So what I covered earlier also, saying that कि long term returns अभी भी आप देखोगे बहुत सारे. In fact, we have a fund which was started at 10 rupees. It even touched 4,000. It's currently about 3,600 kind of NAV. So which basically saying that 1 lakh invested was 4 crores worth or touched 4 crores at some point of time. So that is well achieved over a 30-year period. So it was not achieved over a 1 year period, correct? Right. So you need to give time. This is how typically equities markets will work, and that's how mutual fund can help you with a diversified portfolio, try to manage the risk within that. So as an SIP investor, you should please remember कि there can be phases where we have seen 2 साल के 3 साल के रिटर्न शायद फ्लैट नेगेटिव भी हो सकते हैं. Right. लेकिन अगर आपका व्यू है कि 5-10 साल के लिए आप एलोकेट कर सकते हो या उससे भी ज़्यादा रह सकते हो, then SIP investors should stick to that. And SIP is a wonderful way to play the markets. Right. क्योंकि मार्केट के जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है. तो अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, यू विल बी गेटिंग मोर यूनिट्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू गोइंग टू पुट इन. इनफैक्ट इफ पॉसिबल यू शुड डू टॉप अप्स राइट इन दिस पीरियड. सो यू नो देयर वाज ये सब जो ये न्यूज़ आया था, तो सम पीपल आर स्टिल सेइंग कि नो, गो फॉर बाइंग, इट्स ओके, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, जस्ट गो टॉप इट अप और यू नो बाय द स्टॉक्स जो भी आपको रीजनेबली मिल रहे हैं. बट यू शुड कम विद सम मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नहीं कि आप इन्वेस्ट करें तुरंत आपको रिटर्न मिल जाए. हो सकता है कंसोलिडेशन फेस है मार्केट का, हो सकता है अगले 6, 12, 18 महीने के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं बना के दे. लेकिन उस समय में आपको पेशेंस दिखाना होगा, बिकॉज यू नो कि फंडामेंटल स्ट्रेंथ है इंडिया में. इंडिया हैज गॉट इट्स ओन सेट ऑफ रीजंस why people will look at India and why India potentially can grow better. What was those factors आप शायद बोल रहे थे और मैंने आपसे कुछ और पूछ लिया. नहीं बिल्कुल नहीं. तो मैं बोला था जो हम देख रहे थे अपने आसपास के जो ग्रोथ इंडिकेटर्स, आप फॉरगेट ऑल द डेटा, सिर्फ आप आसपास नजर घुमा के देख लो. कई रोड्स हाईवेज बन रहे हैं, कई मेट्रोज बन रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे जगह पे, जैसे डिफेंस फॉर एग्जांपल, वेयर इंडिया इज एक्चुअली गेनिंग करेंसी. इनफैक्ट लॉट ऑफ द इंडियन कंपनीज टुडे are possibly also on the verge of exports in starting. So from a largely importing kind of country, mobile handsets we have seen, India was one of the largest importers. Today we become the second largest or probably third largest exporter in the world. So you could see that shift which is happening. तो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग का लहर है, इंडिया में एक ग्रोथ का लहर है, which is there and which is what finally equity markets will feed into for a simple reason. ग्रोथ है तो अर्निंग्स है तो इक्विटी रिटर्न्स है. So that is how we can relate. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. सो वाओ, थैंक यू सो मच राजेश जी. आज हमने बहुत सारी लर्निंग्स की. आई एम वेरी श्योर हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू, माय प्लेजर. नाइस स्पीकिंग टू यू. थैंक यू. सो ऑडियंस, डू लेट अस नो आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा. व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट? प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो what more things you would like to learn from us. Okay, see you all in the next episode.